So in this session we are going to perform an experiment on the compound pendulum. See the experiment number 8, compound pendulum, or you can say simple pendulum or compound pendulum. Okay. So what is the aim of this experiment? To determine the value of acceleration due to gravity, that is g, with the help of bar pendulum or compound pendulum. So aim क्या है practical का? We have to just find out the value of g. G is nothing but the acceleration due to gravity with the help of bar pendulum or compound pendulum. So this is the aim of this experiment. So see, these are the equipments required. So in that, steel bar with holes in it for suspension, that is you can say bar pendulum. Second, a knife edge fulcrum. After that, we required stopwatch, and lastly meter scale. So these are the different equipments we required to perform this experiment. Okay. After that, see, this is the theory of this experiment. So compound pendulum is defined as right body suspended in vertical plane from a point on the body other than center of gravity. तो compound pendulum क्या रहता है? एक ऐसी बॉडी, रिजिड बॉडी कह लीजिए आप, जिसका एक सिरा अटैच है, ठीक है, और दूसरा फ्री है. ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेंडुलम कहेंगे. और कंपाउंड पेंडुलम किसको कहेंगे? एक बार, स्टील का बार है या स्केल है स्टील की, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बार पेंडुलम. सो ऑन गिविंग स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स इट ऑसिलेट्स एंड परफॉर्म हार्मोनिक मोशन. जब उसको हम डिस्प्लेस करेंगे उस बार को, तो वो क्या करेगा? It oscillates. So acceleration due to gravity g by, so t is equal to 2 pi into under root capital L by g. So this is the time period. T is the time period, and small g is equal to 4 pi square L by t square. So these are the formula by using which we can determine the time period and acceleration due to gravity. Okay, so in that, where t is the time period and L is the distance between the center of suspension and the oscillations. So that is the effective length of that compound pendulum or compound bar. So see, so this is the diagram of compound pendulum. एक ऐसा स्टील का बार रहता है, ठीक है, और उसमें जो है 5 सेंटीमीटर पे होल रहते हैं, ठीक है. लेट सपोज इसका जो लेंथ है 1 मीटर है, बार का लेंथ जो है 1 मीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 मीटर का बार रहेगा. लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो नियर अबाउट वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो देखो, जब इस बार पेंडुलम यहां पे फिक्स है, ये पॉइंट पे फिक्स है. फिक्स मतलब क्या है? होल है. तो उस होल में क्या करेंगे? हम फल्क्रम डालेंगे. नाइफ एज बोलते हैं उसको, स्क्रू रहता है नाइफ एज का, उसमें प्लेस करेंगे और वो पेंडुलम असेंबली एक फिक्स सपोर्ट पे रखेंगे और वहां से ऑसिलेट करेंगे. सो सी प्रोसीजर नंबर 1, पेस्ट a small piece of paper on either end of the compound pendulum and mark on one side A and on other side B. पेंडुलम की जो दो एंड्स है, तो एक एंड को आपको A नाम देना है और दूसरे एंड को आपको B नाम देना है. आफ्टर दैट, प्लेस द नाइफ एज इन द फर्स्ट होल ऑन आइदर साइड पैरेलल टू ईच अदर एंड मेक देम टाइट सो दैट शार्प एज इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. After that, place a spirit level on the glass plates fixed on the bracket in the wall meant for suspending the pendulum, and see that the upper faces of the glass plates are in the
same level. Suspend the pendulum from a knife edge on the side A so that knife edge is perpendicular to the edge of the slot and pendulum is hanging parallel to the wall. तो सीम असेंबली जो है वॉल को पैरेलल आएगा आपका कंपाउंड पेंडुलम. So after that, set the pendulum into the vibration with a small amplitude and allow it to make a few vibrations so that this becomes regular. उसके बाद क्या करना है, असेंबली रखने के बाद पेंडुलम को स्मॉल एंगुलर मूवमेंट हमें देना है. उसके बाद वो कुछ ऐसा ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, रेगुलर हो जाएगा. मतलब ज्यादा जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा. स्टेबल मतलब उसका ऑसिलेशन स्टेबल हो जाएगा, ऐसा स्मूथली ऑसिलेट करेगा. आफ्टर दैट स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड काउंट वन ऑसिलेशन व्हेन द पेंडुलम इज पासिंग थ्रू द सेम पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन एंड सो ऑन. उसके बाद क्या करना है, स्टेबल ऑसिलेशन स्टार्ट होने के बाद आपको स्टॉप वॉच ऑन करनी है और उनके ऑसिलेशन काउंट करने हैं. नोट द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन एंड रिपीट अगेन इट, टेक द मीन. उसके बाद 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लेता है वो आपको निकालना है और ये प्रोसीजर आपको रिपीट करना है. एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द CG एंड देयर इनर एज ऑफ द नाइफ एज. मतलब अभी ये पहला होल है तो CG से इस होल का कितना डिस्टेंस है वो मेजर करना है. दूसरे सेंटर ऑफ होल का CG से कितना डिस्टेंस है वो भी मेजर करना है. नाउ सस्पेंड इट ऑन द नाइफ एज ऑन द साइड B. जैसा ये पेंडुलम है, ये साइड इसको दिया, B साइड इसको दिया, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ होल्स रहेंगे ये साइड को CG से लेके, और इस साइड में भी कुछ होल्स होंगे. अभी ये साइड के रीडिंग हो गए अप टू CG. सिमिलरली B साइड को लेना है, उसके रीडिंग लेना है, उसके रीडिंग लेना है. नाउ सस्पेंड इट ऑन द नाइफ एज ऑन द B साइड, on the side B, and repeat the procedure with the knife edges in the second, third, fourth, etc. holes on either side of the center of gravity.
So see, after performing the experiment, just this is the observation table that we have to fill. So in observation table, from edge A side. So in this observation table, so from side A, first column is serial number, second column is distance of knife edge hole from CG in centimeter. थर्ड कॉलम नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो हमने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने लिए हैं 20 है ना, 20 लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है टाइम ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब 20 नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम आता है ये आपको रीडिंग लेना है, उसका टाइम आपको लेना है। सो टाइम ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन t सेकेंड, ओके। And last column is time period. So time period is nothing but the capital T is equal to small t n. N is the number of oscillations and t is the time in second. तो देखो सीरियल नंबर 1 में डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज होल कितना है 45 सेंटीमीटर। उसके बाद 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 एंड लास्ट 5। मतलब सीजी के एक साइड का जो है ए साइड का टोटल डिस्टेंस कितना है 45 सेंटीमीटर है ना, और वो जो होल है कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे सिचुएटेड। एक साइड को 9 है और दूसरे साइड को 9 है, ये एक साइड का होगा, ये साइड का, ठीक है। तो यहां पे देखो अभी 45 आपका डिस्टेंस है नाइफ एज होल का सीजी से लेके, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं 20 है। उसको टाइम कितना लगता है 3.5 सेकेंड। मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 कंप्लीट करने के लिए इट टेक्स 33.5 सेकेंड टू कंप्लीट द 20 ऑसिलेशंस, टू कंप्लीट द 20 ऑसिलेशन। सिमिलरली अभी नाइफ एज होल कितने डिस्टेंस पे है 40 सेंटीमीटर पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 है। 20 नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कितना आता है 33 सेकेंड। सिमिलरली 35, 30, 25, 20, 15, 10 एंड 5, इनके लिए आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन फिक्स रहेंगे, उनका टाइम ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद इस फॉर्मूले में आप कैलकुलेट कर सकते हो इनका टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू स्मॉल t ईयर, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जर्वेशन टेबल फ्रॉम एज बी साइड, अभी ए साइड हो गया, अभी बी साइड, सेम डिस्टेंस आएगा नाइफ एज का, जैसे कि 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 एंड 5। सेम डिस्टेंस रहेगा आपका नाइफ एज होल का सीजी से लेके। नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 है। इनके लिए टाइम कितना लगता है देखो, 45 के लिए बी साइड से 30 सेकेंड आया है, 40 के लिए 30 सेकेंड, 35 के लिए 31, 30 के लिए 33, 25 के लिए 30, 20 के लिए 31, 15 के लिए 32, 10 के लिए 37 एंड 5 के लिए 48 सेकेंड। इतना टाइम आपको लगता है 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू स्मॉल t बाय स्मॉल t क्या है, टाइम taken to complete the 20 oscillation, and n is the number of oscillations which is equal to 20. इसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ कैसे बनाना है, एक्स एक्सिस को क्या लेना है डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज होल फ्रॉम द सेंटर, जैसे कि मैंने सेंटर लाइन में 0 रेफरेंस लिया है, ठीक है 0 लिया हूँ। उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। तो एक फेस का 45, सिमिलर दूसरे फेस का 45, ठीक है।
तो पहला रीडिंग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो पहला रीडिंग कितना है 45 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो ग्राफ में कहाँ पे आएगा 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने, टाइम पीरियड टी इन सेकेंड। तो वहाँ पे हमने स्केल लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। 5, 10, 15, मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए कितना लिया है 5 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड, मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है आपका 0.25, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 0.75, यहाँ पे 1, लाइक दैट। तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है। अभी जो ऑब्जर्वेशन टेबल की जो रीडिंग है वो ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसा पहला रीडिंग क्या था आपका 45 सेंटीमीटर, तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना आया है 1.65। अभी 1.65 कहाँ पे रहेगा, ये देखो 1.5 यहाँ पे है। ठीक है, ये 1.5 का लाइन है, तो आपका टाइम पीरियड कितना है 1.65, मतलब ये 5 है और उसके बाद 0.25 मतलब एक सेंटीमीटर में कितने mm रहते हैं 10 mm। ठीक है, मतलब 1 mm जो है 1 mm मतलब कितना है, एक लाइन इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो रीडिंग आया आपका 1.65। तो 1.5 के बाद जो एक लाइन है 1.5 के बाद में एक जो लाइन आएगा पहला और दूसरे लाइन के बीच में आपका वो पॉइंट रहेगा। ठीक है, 1.5 के बाद एक लाइन के बाद जो दूसरा लाइन है सेंटर। ठीक है, तो 45 पहला डिस्टेंस है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो दूसरा रीडिंग है कितना है 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ नाइफ एज 40, और टाइम पीरियड कितना है सेम है 1.65। अभी 40 कहाँ पे आपका, ये इसका भी कहाँ पे आएगा, ये सेम लेवल पे आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है 35, तो उसका कितना है आपका टाइम पीरियड 1.5। 35 सेंटीमीटर के लिए 1.5, तो 35 सेंटीमीटर के लिए 1.5 एग्जैक्टली 1.5 का लाइन यहाँ से इधर जाता है और 35 का यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, तो वो पॉइंट होगा आपका तीसरा रीडिंग। ठीक है, उसके बाद 30 के लिए कितना है 1.55। 30 के लिए आपका 1.5 है, 25 के लिए भी 1.5 है, दोनों मार्क करके लेते हैं 30 और 25। 30 के लिए 1.55, तो ये है 1.5 और एक लाइन ऐड किया तो 1.55, तो दूसरा लाइन इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, 25 का भी 1.55 है, तो वो भी सेम लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 के लिए कितना है 1.5, 20 के लिए 1.5, 20 1.5 जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट है आपका वो रीडिंग। उसके बाद है आपका 15
1.65, 15 के लिए कितना है 1.65, 15 के लिए 1.65, 1.65 कहाँ पे आएगा अभी? एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पहिला पॉइंट जिथं है ना, पहिला पॉईंट जिथे होता तिथेच येणार आहे. हे 1.5 च्या वर एक आणि दुसऱ्या लाईनच्या मध्ये. ठीक है. उसके बाद 10 सेंटीमीटर का 1.8 और 5 का 2.4. अभी 10 सेंटीमीटर का कितना है 1.8. 1.8 कहाँ पे आएगा 1.5 यहाँ पे है. तो ये कहाँ, ये कितना है आपका 1.75 है. ये कितना है बराबर है 1.75. पर अपना रीडिंग कितना है 1.8, मतलब 0.25 ऐड करना पड़ेगा उसमें तो 8 हो जाएगा. ये रहा वो. तो 10 के लिए एक लाइन, इसके ऊपर एक लाइन हमें मार्क करना है ये वाला. तो ये रीडिंग हो गया आपका 1.8 का. और लास्ट का जो रीडिंग है आपका वो है 2.4 का. ठीक है. तो 5 सेंटीमीटर के लिए 2 यहाँ पे. ठीक है. तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम लेते हैं. सिमिलरली ये हो गया ए फेस का. सिमिलरली बी फेस का रीडिंग ऐसे ही आ जाएंगे आपके.